ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی، انم اور ارمان کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی، تو چلیے پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو انم کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے صرف نکاح کرنے کی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ارمان کافی سخت لہجے میں اسے دیکھتے بولا۔ اس بات پر انم ایک دم سہم گئی اور دونوں ہاتھ سامنے کر کے خود کو بچانے کی کوشش کی، پھر جلدی سے بولی، میں صوفے پر سو جاؤں گی، مجھے باہر مت نکالنا، خدا کا نام ہے مجھے مارنا مت۔ وہ آنٹی مجھے یہاں چھوڑ کر گئی تھی، میں نے انہیں کہا بھی تھا۔ وہ اٹکتے ہوئے اپنی صفائی دینے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تبھی ارمان جو اسے کمرے سے باہر نکالنے ہی والا تھا، ایک دم اس کی بات سن کر ٹھٹک کر رک گیا اور بڑے غور سے انم کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے باوجود یوں لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے سامنے نہ جانے کتنی بھیانک شے دیکھ لی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر انم کو کلائی سے تھامنا چاہا تو وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی آگے جوڑتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے منع کیا تھا سب کو کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے نعمان کے لیے بھی منع کیا تھا، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میں وہاں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گی، خدا کا نام ہے مجھے مارنا مت۔ انم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہکلا کر بولنے لگی، جبکہ ارمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ سپاٹ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن اس کے خاموش کروانے پر بھی جب انم کے چپ کرنے اور رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تو اس نے انم کے دونوں کندھے اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے تقریباً جھنجھوڑ ڈالا، پھر سنجیدگی سے بولا، خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں، جہاں پر سونا ہے وہاں پر سو سکتی ہو، خاموش ہو جاؤ، نہیں مار رہا میں تمہیں۔ اس بات پر انم سہم کر اپنی غزالی آنکھیں ارمان پر ٹکائے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ اور یہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا بھائی تم پر ہاتھ اٹھاتے تھے؟ وہ اب لب بھینچے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس بات پر اس نے بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن دوبارہ اپنے لبوں کو دانتوں تلے کاٹتے نگاہیں جھکا گئی، جس پر ارمان گہرا سانس لے کر پیچھے ہوا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر سے اٹھا دیا، پھر جا کر بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ سے کھڑا ہوا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر انم کے سامنے کر دیا، جو وہ 2-3 گھونٹ میں ہی ختم کر چکی تھی۔ پانی پینے کے بعد ارمان نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور کہا، تمہیں صوفے پر سونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کمرہ تمہارا بھی اتنا ہے جتنا کہ میرا، تم چاہو تو بیڈ پر لیٹ سکتی ہو، میں باہر جا رہا ہوں، تم ریلیکس ہو کر لیٹو۔ یہ بول کر وہ چند لمحے کھڑا اس کے تاثرات کو دیکھتا رہا، جبکہ انم نے اپنی نگاہیں نہیں اٹھائی تھی۔ وہ مسلسل سفید ٹائلوں والے فرش کو تک رہی تھی۔ ہاں، دروازے کی کنڈی لگانا مت، میں صبح جلدی کمرے میں آ جاؤں گا، سمجھ رہی ہو نا بات؟ اس بات پر انم نے ہاں میں سر ہلا دیا تو الماری سے اپنے کپڑے نکال کر چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارمان کے جاتے ہی انم نے گہرا سانس لیا اور تقریباً بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ زندگی اتنی عجیب ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ جب سے نعمان کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد یہی تو لگا تھا کہ شاید وہ سانس لینے لگی ہے، یا اسے اپنا آپ اب زندوں میں شمار ہوتا محسوس ہوا تھا۔ لیکن اپنے گھر والوں سے اسے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ ایک جہنم سے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ پھر ارمان کے پلے سے باندھ کر اسے جہنم میں دوبارہ جھونک دیں گے۔ کاش وہ اپنے گھر والوں کو حقیقت بتا پاتی کہ نعمان کے ساتھ زندگی کتنی مشکل تھی۔ اسے اچانک ہی اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی، جب نعمان نے اس کے بالوں کو ہاتھ میں دبوچ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا، جس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ اس نے نعمان کے پسند کے پارلر سے میک اپ نہیں کروایا تھا۔ جیسے ہی نعمان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ کر غراتے ہوئے بولا، یہ کیا بل بطوڑی بن کر بیٹھی ہو، نہیں گئی وہاں جہاں پر میں نے بولا تھا؟ اس بات پر انم ایک دم سہم کر بولی کہ وہاں کا بجٹ بہت زیادہ تھا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔
इस बात पर नौमान ने एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर दे मारा और उसे बेड से धक्का देते हुए बोला, ये लो, लानत भेज दी है मैंने तुम्हारे बजट और तुम्हारे मेकअप पर। उठो यहाँ से, जाकर सोफे पर जाकर लेटो। खबरदार जो अब दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मेरे सामने लेकर आई तो। वो हैरत से आंखें खोले उसे देखती रही, जबकि नौमान कंबल ओढ़कर सोने के लिए लेट चुका था। कितनी देर तो उसे यकीन ही नहीं आया कि अभी चंद लम्हे पहले उसके साथ क्या हुआ। अपनी गाल पर हाथ रखे वो चुपचाप बालकनी में आकर खड़ी हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो शौक के आलम से बाहर निकली, तब आंखों से आंसू तब तब बाहर बहने लगे। उसने रुख मोड़ कर देखा तो नौमान कमरे में गहरे खराटे लेता हुआ सो रहा था, जबकि वो उरूसी लिबास में बालकनी की रेलिंग थामे अपनी बेबसी पर रो रही थी। अगली सुबह वो नौमान के उठने से पहले ही तैयार हो चुकी थी। जब घर वाले आए तो उन्हें उसने किसी किस्म का शक नहीं होने दिया कि रात कितने कर्ब में गुजारी थी। हर एक के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही थी, क्योंकि उसकी अहम वजह यही थी। उसके माँ बाप तो थे नहीं, चच्चा चच्ची ने पाला था। हाँ, उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी चच्ची हमेशा ऐसे यही ताने देती थी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते अच्छी जगह नहीं होते। जब नौमान का रिश्ता इसके लिए आया तो चच्चा चच्ची ने झट से इसका रिश्ता तय कर दिया। वो अच्छा खासा कमाता था, दिखने में भी खूबसूरत था, लेकिन जब अनम की नौमान के साथ मुलाकात हुई तो नौमान ने साफ अल्फाज में कह दिया कि मेरे वालिदैन ने मुझे ये रिश्ता करने पर मजबूर किया है, जबकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अनम ने मना करना चाहा, लेकिन चच्चा चच्ची उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें अनम के बाद अपनी बाकी दोनों बेटियों भी दिखाई दे रही थी, सो वो चाहने के बावजूद उन्हें हकीकत बताकर ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती थी। अगर बता भी देती तब भी वो लोग उसे सब्र करने की ही तलकीन करते। अनम पूरी रात जूं की तूं बेड पर आड़ी तिरछी लेटी रही। तकरीबन फजर के वक्त कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला तो अनम ने चौंक कर देखा तो अरमान ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, हाथ में शेरवानी लिए कमरे में खड़ा था। उसे लगा था कि शायद वो सो रही होगी, लेकिन अपने सामने उसे जागता देखकर एक लम्हे के लिए वो ठुठक कर रुक गया। फिर संजीदगी से बोला, तुम सोई नहीं क्या? अनम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस टुकर टुकर उसकी शक्ल देखती रही, जबकि अरमान कोई जवाब ना मिलने पर उसे नज़रअंदाज करके वॉशरूम की जानिब चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो नहाया हुआ था और कपड़े भी तब्दील किए हुए थे। अब वो लाइट ब्राउन कलर की शलवार कमीज़ में मलबूस था। टोपी उठाकर वो कमरे से बाहर चला गया, गोया नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हो। ये देखकर अनम को एक झटका लगा तो वो भी वॉशरूम की जानिब चली गई और फिर वज़ू करके नमाज पढ़ने के बाद इतनी बुरी तरह से रोई कि शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में इतना रोई होगी। जब अरमान दोबारा कमरे में आया तो वो बेड के साथ टेक लगाए नीचे जायनुमाज पर बैठे आंखें मूंदे हुए थी। शायद सो रही थी, क्योंकि शोर शराबा करने के बावजूद उसने अपनी आंखें खोलकर अरमान को नहीं देखा था। चंद लम्हे खड़ा वो उसे बड़े गौर से देखता रहा। यही वो लड़की थी जिसे वो पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा था, लेकिन क्या पता था कि ज़िंदगी इतनी भूल भुलैयों के बाद उस लड़की को इसकी किस्मत में लिखेगी। उसे वो दिन अच्छी तरह याद था जब पहली मर्तबा अनम को उसने अपने ऑफिस में देखा था। पहले दिन वो बाबा के साथ ऑफिस गया तो काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था, क्योंकि बाबा ने उसके दोस्तों के साथ उसका ट्रिप कैंसिल करवा दिया था और अपने साथ उसे ऑफिस ले आए थे। अभी तकरीबन एक आधा घंटा ही हुआ था जब वो बाबा के केबिन से बाहर निकला तो देखा एक लड़की वाजिद साहब की टेबल पर खड़ी बच्चों की तरह मुंह बसोर रही थी कि चले ना चचा, आपके बॉस से छुट्टी मैं ले लेती हूँ। आप जानते हैं ना कि चच्ची को सिर्फ आपकी चॉइस ही अच्छी लगती है। अगर मैं उनके लिए कोई भी तोहफा लूँगी तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। जबकि वाजिद साहब मुस्कुराकर बार बार उसे मना कर रहे थे कि नहीं, अब तुम्हारा इम्तहान है, जाकर तुम खुद से अपनी चच्ची के लिए जो लेना चाहती हो ले लो। और ये वो लम्हा था जब अरमान उस लड़की को अपना दिल दे बैठा। वहीं खड़े खड़े उसने फैसला कर लिया था, अगर मुस्तकबिल में शादी के मुतालिक उसे सोचना पड़ा तो सबसे पहले वो इस लड़की के मुतालिक सोचेगा, जिसका नाम गालिबन अनम था और जो उनके एम्प्लॉय की भतीजी थी। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि किस्मत
इसी लड़की को उसकी भाभी बनाकर उसके घर में ले आएगी। बाद में भी कई मर्तबा वो ऑफिस आया था, लेकिन काम या अपने बाप के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनम के लिए। उसे उम्मीद थी कि एक आधी मुलाकात तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तभी वो मायूस हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर फैसला कर चुका था कि वाजिद साहब के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर उनके घर का एक आधा चक्कर ज़रूर लगाएगा, ताकि अनम से उसकी और जान पहचान बढ़ सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तक वो उनके घर जाने का कोई फैसला करता, नौमान का रिश्ता तय हो चुका था। शाम को वो बैडमिंटन खेलकर घर वापस आया तो देखा चाय के साथ मिठाई का दौर चल रहा था। वो भी खुशी खुशी आड़ा तिरछा सोफे पर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, ये मिठाई किस खुशी में? तभी मामा ने मुस्कुराकर नौमान की तरफ इशारा किया और कहा, हमने इसके लिए लड़की देख ली है। इस बात पर अरमान खुशी खुशी अपनी जगह से उठा और जाकर भाई के गले लगा, लेकिन साफ लग रहा था वो काफ़ी झुंझलाया हुआ है। उस पर भी नौमान ने संजीदगी से माँ को देखा और कहा, मैं ये शादी सिर्फ आप लोगों की खातिर कर रहा हूँ। मामा ने उसकी बात को एक तरफ करते हुए आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और कहा, हाँ बेटा, देखना तुम्हें कितने रंग लगेंगे अगर तुम वालिदैन की बात मान रहे हो तो। अच्छा, अब मुझे भी तस्वीर तो दिखा दीजिए। उन दोनों की बात करते देखकर अरमान चिढ़कर बोला तो मामा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, कल हम मंगनी के लिए जा रहे हैं, तुम जाकर अपनी भाभी को देख लेना। अरमान कंधे उचकाकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन जब वो मंगनी करने के लिए गए तो सामने कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे ज़िंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा उसने दिल से चाहा था। सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, सिवाय नौमान और अरमान के। अपने दुख में तो अरमान के लिए वहाँ बैठना मुहाल हो गया। उसे यूं लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। थोड़ी देर बैठकर वो एक इमरजेंसी कॉल का बहाना करके उठ गया, जबकि मामा रोकती ही रह गई कि मंगनी की रस्म तो हो जाने दो। लेकिन उसने एक दोस्त के एक्सीडेंट का बता दिया कि मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ रहा है। इमरजेंसी तो क्या ही होनी थी, जाने कितनी ही देर वो सड़कों पर यूं ही गाड़ी घुमाता रहा और सिगरेट के लंबे लंबे कश लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। बाकी शादी के मामलात कब तय हुए, कैसे हुए, उसे किसी बात का भी पता नहीं था। उन्हीं दिनों घर में शादी के हंगामे जोर उठाने लगे तो उसने पाकिस्तान से अपनी माइग्रेशन लंदन करवा ली। मामा बाबा पहले तो हैरान हुए, लेकिन साथ खुश भी थे, क्योंकि वो उसे वहीं पर भेजना चाहते थे कि वहाँ से डिग्री हासिल करो। मगर अपने दोस्तों की वजह से वो पाकिस्तान रुका हुआ था। उसने यह अचानक फैसला क्यों लिया था कोई भी नहीं जानता था, लेकिन हर कोई काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। और उन दोनों की शादी होने से पहले ही वो लंदन चला गया। मामा ने कितना उसे नौमान की शादी पर बुलाया, लेकिन वो नहीं लौटा। हमेशा अपनी मसरूफियत का बहाना कर देता कि अब पेपर चल रहे हैं, अब ये है, अब वो है। वो ये बात अच्छी तरह मानता था कि अनम ने उसके साथ कोई अहदो पैमा नहीं बांध रखे थे, लेकिन फिर भी जितना जज्बाती वो था, अनम को अपने भाई के पहलू में बैठा देखना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हाँ, कुछ अर्सा लगता, शायद वो उसे भूल जाता, लेकिन तब तक के लिए उसे खुद को थोड़ी स्पेस देनी थी, जिसके बाद मुमकिन है कि उसी अनम के होने या ना होने से कोई भी फर्क ना पड़ता। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। ठीक 4 माह बाद ही नौमान की एक अचानक हादसे में मौत हो गई और दोबारा वो पाकिस्तान वापस आया। अब की मर्तबा उसने दानिस्ता तौर पर अनम को देखने से एहतराज़ बरता था। अगर देखा भी था तो फ़ौरन से अपनी निगाहों का रुख बदल लिया था। वो नहीं जानता था कि उसकी क्या हालत है या क्या नहीं। भाई की आखिरी रसूमात अदा करके वो दोबारा जब लंदन जाने लगा तो मामा और बाबा ने मना कर दिया कि अरमान, तुम तो हमारे पास रुक जाओ, अब तो नौमान भी नहीं, हम क्या करेंगे। पीछे अकेले अनम भी अपने मैके वापस जा चुकी थी, तो उसे यहाँ रहने में कोई कबाहत नहीं थी। दोबारा लंदन से अपनी माइग्रेशन पाकिस्तान कराकर वो इधर ही शिफ्ट हो गया, लेकिन अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। अनम का जिक्र भी घर में होना तकरीबन बंद हो चुका था। वो क्या करती थी क्या नहीं, उसे किसी बात की खबर नहीं थी। पहले यूनिवर्सिटी में आधा दिन लगा कर आता और बाद में अपने बाप की फर्म में काम करने में मगन हो जाता। दिन और रात का कोई होश नहीं था।
जब कुछ अरसे तक मामा बाबा संभले तो उन्होंने अरमान के लिए अनम के रिश्ते की बात छेड़ दी। ये बात सुनकर अरमान हत्थे से ही उखड़ चुका था, क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था वो अपने भाई की बेवा के साथ शादी करे। उसने साफ साफ इनकार कर दिया तो वो हैरत से बोले, अरमान आखिर मसला ही क्या है? वो बच्ची हमारे घर की फर्द है। आज अगर तुम्हारा भाई होता तो वो यहीं पर मौजूद होती, लेकिन अब तुम्हारा भाई नहीं है तो हमारा काम है हम अपनी बच्ची को अपने घर वापस लेकर आएं। उस पर अरमान ने कंधे उचकाए और संजीदगी से बोला, आप बेशक उसे वापस लेकर आएं, लेकिन मेरी बीवी बनाकर नहीं। तब मामा ने उसे अपनी कसम दे दी कि तुम्हें शादी करनी ही है तो सिर्फ और सिर्फ अनम के साथ करनी है। उसकी चच्ची उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रखती। बर्ताव तो पहले भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन काबिल कबूल था, मगर अब तो काबिल कबूल भी नहीं रहा। उसकी चच्ची की बच्चियों के जो रिश्ते आते हैं वो अनम को पसंद करके चले जाते हैं, तभी वो उसे जान से मारने के लिए तैयार फिर रही हैं। 2 दिन पहले उसके चचा का फ़ोन आया था और वो बता रहे थे, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं अरमान के लिए अनम का रिश्ता ले लूँगी। ये बात सुनकर अरमान काफ़ी हैरत से उन्हें देखता रहा, फिर दोबारा इनकार में सर हिलाते बोला, मॉम आप ये ज्यादती कर रही हैं। मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं कि अपने भाई की बेवा को अपनी बीवी बनाऊं। रखना है तो बेशक घर की फर्द बनाकर रखें, पर मैं ये कुर्बानी नहीं दे सकता। लेकिन वहाँ अरमान की सुनने वाला था ही कौन? और बिलाखिर अनम के बारहा इनकार करने के बावजूद उन दोनों की शादी हो चुकी थी। अरमान ना जाने कितनी देर वहाँ खड़ा यक तक उसे सोते देख रहा था। उसने अनम को अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश ज़रूर की थी, लेकिन ये ख्वाहिश उसके भाई की जान लेकर पूरी होगी, इस बात के मुतालिक कभी नहीं सोचा था। तभी अचानक से अनम ने अपनी आंखें खोल दी। शायद उसे एहसास हो गया था कि कोई काफ़ी देर से खड़ा उसे मुसलसल तक रहा है। उसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थीं। अरमान उसे उठता देखकर बढ़कर आगे सोफे पर बैठ गया, जबकि वो भी फटाफट उठकर जायनुमाज तय करके अपनी जगह पर रखने लगी और वो वापस आकर बेड पर बैठ गई। दोनों अपनी अपनी जगह पर खामोश थे। थोड़ी देर बाद वो बोली तो उसका लहजा काफ़ी नम था, आप चाय लेंगे? जिस पर अरमान ने फ़ौरन से मना कर दिया कि नहीं, मैंने मुलाजमा को बोल दिया है, वो बना रही है। तो वो खामोश होकर बैठ गई। अरमान ने उनसे कनखियों से देखा, जबकि वो बेडशीट पर बने फूलों के गिर्द उंगली फेरती काफ़ी खोई खोई सी महसूस हुई थी। तुम रात को बता रही थी कि भाई तुम पर हाथ उठाते थे। अनम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अरमान डायरेक्ट ये बात उससे दोबारा यूं पूछ सकता है। चंद लम्हे तो वो खामोश रही, फिर बोली, तो सिर्फ इतना कि मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। अरमान उसे देखकर रह गया, फिर कंधे उचकाता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, बेशक हम दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन मैं इस रिश्ते को वक्त देना चाहता हूँ। ये रिश्ता बहुत सारी मजबूरियों के बाद किया गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इन मजबूरियों को समझोगी। अनम अभी भी नीचे बेडशीट पर ही अपनी निगाहें टिकाकर बैठी थी, जब अरमान चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ और संजीदगी से बोला, लेकिन मामा बाबा को इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं पड़ना चाहिए कि मियाँ बीवी होने के बावजूद हम एक दूसरे से कितना दूर हैं। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करोगी, यूं ही मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में घुसने से गुरेज बरतूंगा। अनम अभी भी नीचे की तरफ ही देख रही थी। अरमान उससे कदम ब कदम पीछे होने लगा, जबकि अनम के बदन से उठती भीनी भीनी खुशबू उसे अपने शहर में जकड़ने की पूरी तरह कोशिश कर रही थी। वो पीछे होता कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनम ने गहरा सांस लिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अरमान अपने भाई से मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये वाकई में उससे मुख्तलिफ था। कल रात के बाद से लेकर अब तक अरमान ने उसके साथ कोई भी तल्ख कलामी नहीं की थी, जबकि कितनी मर्तबा नौमान के मुंह से ही वो ये बात सुन चुकी थी कि अरमान उससे भी ज़्यादा गुस्से का तेज़ है। मामा भी ये बात कई मर्तबा उसे बता चुकी थी। उसके बाहर जाते ही अनम ने गहरा सांस लिया। थोड़ी देर बाद मुलाजमा नाश्ते का कहने के लिए वहाँ आ गई। वो हल्का फुल्का मेकअप करके नीचे चली आई। नाश्ते की मेज़ पर हर कोई खामोश था। उसे वो दिन याद आया जब नौमान की बीवी के तौर पर वो नीचे आई तो पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। खुशगपियाँ हो रही थी
हर कोई कितना खुश लग रहा था। लेकिन आज नाश्ते की टेबल पर सिर्फ वो 4 लोग मौजूद थे जो खामोशी से अपना अपना नाश्ता करते हुए एक दूसरे से निगाहें भी चुरा रहे थे, यानी खुद को ही एक दूसरे का मुजरिम भी समझ रहे थे। अनम ने गहरा सांस लिया और नाश्ता करना शुरू किया। तकरीबन 2-3 नवाले लेकर ही पेट भर चुका था, उससे मजीद नहीं खाया गया। अरमान छोटे छोटे नवाले लेता बड़े गौर से उन्हें देख रहा था। मामा, मुझे भाई के कमरे की चाबी चाहिए। अचानक ही नाश्ते के दौरान अरमान के मुंह से ये अल्फाज निकले। अनम जो चाय का कप हाथ में उठा चुकी थी, एकदम से वो चाय का कप उसके हाथ से छलक गया और चाय खाने की मेज़ पर गिर गई। ये रद्द अमल बहुत अचानक था। एक लम्हे के लिए अरमान का माथा ठनका कि शायद वो नौमान के नाम से खौफजदा हुई है। मुलाजमा ने फ़ौरन से आकर वहाँ सफाई कर दी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था ये नौमान का खौफ नहीं बल्कि कमरा खुलने के नाम का खौफ है। उस वक्त तो चाय गिरने की वजह से ये बात दब गई, लेकिन पूरा दिन अरमान के दिमाग में ये बात किसी जोंक की तरह जकड़ी रही। पूरा दिन वो घर में क्या करती रही और क्या नहीं, अरमान को उस बात की कोई खबर नहीं थी। वो बिला मकसद सड़कों पर फिरता रहा, कभी किसी कैफ़े में तो कभी कहीं। शाम को जब वो घर वापस आया तो लाउंज में दाखिल होने से पहले उसके कानों में मामा की आवाज़ पड़ी कि नौमान की ये बात तुम अरमान को नहीं बताओगी। जैसे ही वो लाउंज में आगे बढ़ा तो मामा उसे देखकर खामोश हो गई, जबकि अनम की आंखों में से आंसू बह रहे थे जो फ़ौरन से उसने अपने दुपट्टे से साफ कर लिए। अरमान अबरोज काकर देखते हुए संजीदगी से बोला, खैरियत, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है मामा? अरमान के अचानक आ जाने पर वो एकदम से परेशान हो गई और बौखलाकर अनम को देखने लगी जो वहाँ से उठकर किचन में जा चुकी थी। उसके जाते ही अरमान सोफे पर वहीं आकर बैठ गया जहाँ अभी कुछ देर पहले अनम थी। क्या हुआ है? क्या बात नहीं बतानी नौमान भाई की मुझे? अभी आते हुए मेरे कान में पड़ा था। नहीं अरमान, तुम्हें सुनने में गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने बात बदलना चाही तो अरमान ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, मामा, मैं अब मेचोर हो चुका हूँ, शादी भी हो गई है मेरी, और मुझे नहीं लगता कि आपको यूं टाल मटोल के साथ काम लेना चाहिए। जो भी बात है आप मुझे बताइए। चंद लम्हे तो वो अरमान को देखती रही, फिर उनकी खुद की आंखें आंसुओं से भर गई, जिन्हें पहुँचते वो नरमी से बोली, बस यही बता रही थी कि नौमान का जिक्र अरमान के सामने मत करना। बेशक भाई है, लेकिन है तो दूसरा मर्द ही ना, उसके अलावा कुछ नहीं। मामा ने उसके माथे पर प्यार करते हुए संजीदगी से कहा, लेकिन अरमान जानता था वो ये बात बदल रही है। कुछ बहुत अहम था जो बताने से वो अनम को रोक रही थी, लेकिन अब चाहने के बावजूद भी अपनी माँ के मुंह से हकीकत नहीं उगलवा सकता, इस बात का तो उसे यकीन हो चुका था। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत। क्या अनम अरमान को कबूल कर पाएगी? और क्या अरमान कभी अपने भाई की बेवा को अपनी बीवी के रूप में कबूल करेगा? और ऐसी क्या बात थी जो अरमान की माँ अनम को बताने से मना कर रही थी? ये सब तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा कि आगे कहानी में क्या होता है। तो चलिए फिर चलें कहानी के अगले हिस्से की जानिब। कुछ देर बाद अनम किचन से बाहर आई तो उसके हाथ में चाय वाली ट्रे थाम रखी थी। खामोशी से चाय पीने के बाद अरमान चुपचाप अपने कमरे में चला आया, जबकि अनम वहीं नीचे बैठी रही। वो काफ़ी बेचैन था, साफ लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात है जो उससे छुपाई जा रही है। थोड़ी देर कमरे में बैठने के बाद वो नीचे आया और मामा के सामने हाथ फैलाते हुए बोला कि मुझे भाई के कमरे की चाबी दीजिए, जिस पर वो एकदम बौखला गई और नजरें चुराते हुए बोली, मुझे याद नहीं अरमान, मैंने कहाँ रखी है? सफाई करवाकर मैंने नौमान का कमरा बंद करवा दिया था। उनके टालने वाले अंदाज से ही अरमान को अंदाज़ा हो गया था कि वो चाबी देना ही नहीं चाहती। मामा, मुझे भाई के कमरे की चाबी चाहिए, अगर मुझे चाबी ना मिली तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। ये बात उसने चबा चबा कर कही थी। एक लम्हे के लिए तो अनम भी चौंक कर अरमान को देखने लगी,
जो अपने इरादे में काफी अटल महसूस हो रहा था। बेटा, मुझे नहीं पता चाबी का, मैं ढूंढ कर तुम्हें दे दूंगी, उन्होंने दोबारा इधर उधर देखते कहा, जैसे वो उसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही हूं। चंद लम्हे तो अरमान उन्हें देखता रहा, फिर चुपचाप ऊपर कमरे की तरफ चला आया और हाथ से ही जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ चुकी थी। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मामा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा था। तभी अनम आगे बढ़ी और नरमी से बोली, चाबी मेरे पास है। अरमान ने घूमकर उसे देखा, फिर हाथ फैला दिया कि लाओ, दो मुझे चाबी। लेकिन वो नफी में सर हिलाकर बोली, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरा कुछ पर्सनल सामान कमरे में बिखरा हुआ है, वो उठाकर मैं कमरा आपके लिए खोल दूंगी। वो जिस तरह ये बात कर रही थी, अरमान को उसकी बात काफी अजीब और मुज़हिका खेज लगी। मैं अपने भाई के कमरे की चाबी मांग रहा हूं। बेटा, वो कह तो रही है वो तुम्हें चाबी दे देगी, तो इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? कल ले लेना चाबी। मामा ने आगे बढ़कर उसे नरमी से पुचकारा तो वो चुपचाप अपने कमरे में चला आया, लेकिन जानता था अंदर ही अंदर कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जिसे वो दोनों सास बहू छुपाने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर बाद अनम कमरे में आई और चुपचाप कमरे में बिखरा हुआ सामान समेटने लगी। अरमान जो सोफे पर बैठा था एकदम उठकर उसके बेहद करीब आया और कंधे से पकड़कर आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से बोला, लाओ, दो मुझे चाबी। ये सुनकर अनम बुरी तरह घबरा गई और नफी में सर हिलाकर बोली, वो मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखी है, मैं ढूंढ कर आपको दे दूंगी। अनम, क्या छुपा रही हो मुझसे? जब मैं घर में दाखिल हुआ था तब मैंने मामा की बात सुनी थी, वो मुझसे तुम्हें कोई बात छुपाने का बोल रही थी। इस बात पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें पहले से ज्यादा फैलकर बड़ी महसूस होने लगी। उसने अपना कंधा अरमान से छुड़वाकर दूसरी तरफ जाना चाहा तो उसने कलाई थामकर दोबारा अपनी तरफ खींचा, यहाँ तक कि उन दोनों के दरमियान फासला बेहद कम रह गया था। कहाँ जा रही हो? अरमान ने ठहर ठहर कर कहा तो एक लम्हे के लिए अनम को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। पता नहीं क्यों, मगर उस वक्त उसे अरमान में नौमान की झलक महसूस हुई थी। प्लीज मुझे कुछ मत कहिएगा, प्लीज, मैं सब मानूंगी, आपकी बात, मुझे मारिएगा मत। एकदम से ही अनम के चेहरे की रंगत मुतगय्यर होने लगी। अरमान उसे वहीं छोड़कर बेड की साइड टेबल के करीब आया। वहां से एक गिलास में पानी डालकर उसे दिया तो अनम ने वो पानी पीने की बजाय एक झटके से गिरा दिया। गिलास फर्श पर गिरकर टूट चुका था। मैं ठीक हूँ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, पर मुझे ये दवा नहीं पीनी। वो बुरी तरह से बौखलाई हुई थी। अरमान हैरत से उसे देखने लगा। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही है। साफ लग रहा था उसे पैनिक अटैक हुआ है। वो काफ़ी घबरा गया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था वो क्या रद्द अमल दे। उसने आगे बढ़कर अनम को संभालना चाहा, लेकिन तब तक वो चीख मारकर बेहोश हो चुकी थी। उसका शोर सुनकर मामा भी ऊपर कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर खामोशी से उसे अरमान की मदद के साथ बेड पर लेटा दिया। वो काफ़ी संभली हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनम का यूं बेहोश होना उनके लिए कोई भी नई बात नहीं है। वो जितने रोबोटिक अंदाज में ये सब कर रही थी, अरमान को हैरत होने लगी। इसे उठाने की कोशिश मत करना, थोड़ी देर में ये खुद ही ठीक हो जाएगी। और आओ तुम खाना खाओ, मैंने लगवा दिया है। वो बड़ी पुरसकून होकर ये सारी बात कर रही थी। मामा अरमान को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर आ गई तो वो पुरसोच अंदाज में बोला, मामा आप काफ़ी पुरसकून लग रही हैं, जैसे अनम की ऐसी तबीयत पहली मर्तबा नहीं हुई, बल्कि अक्सर औकात उसकी तबीयत ऐसे ही बिगड़ जाती हो। मामा ने परेशान होकर उसे देखा, फिर नरमी से मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पहले बस कभी कभार पैनिक अटैक हो जाते थे तो मैं परेशान नहीं हुई। चलो तुम खाना खाओ, वो ठीक हो जाएगी। बस उसके साथ नरम लहजे में बात करना, बहुत हसास बच्ची है
और नौमान की वफात के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हसास हो गई है। वो महसूस कर सकता था कि मामा ये बातें बता रही हैं और उसे मुकम्मल तौर पर हकीकत नहीं बता रही। जो बात भी वो बता रही थी उसमें सच और झूठ दोनों की आमेजिश थी। मुलाजमा वाकई खाना लगा चुकी थी, लेकिन उसका खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था। जहर मार करके 2-3 नवाले लिए थे। मामा, मुझे लगता है कि अनम और नौमान भाई का ताल्लुक कुछ ठीक नहीं था। वो जो बड़ी दिलजमी के साथ खाना खा रही थी। अरमान की बात पर एक लम्हे के लिए रुककर उसे बड़े गौर से देखने लगी, फिर कंधे उचकाकर बोली, बेटा, हमें इस बात का कैसे पता हो सकता है? क्या अनम ने तुमसे कोई जिक्र किया? जिस पर अरमान ने नफ़ी में सर हिलाया। वो बात करने के साथ साथ बड़े गौर से अपनी माँ को देख भी रहा था। जैसे ही उसने नफ़ी में सर हिलाया तो मामा ने एक गहरा सांस खारिज किया, फिर कंधे उचकाकर बोली, अगर अनम ने ऐसी किसी बात का जिक्र तुमसे नहीं किया तो मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी नौमान अब रहा नहीं तो बिला वजह इन बातों को कुरेदने की कोई तुक नहीं बनती। तुम खाना खाओ, और हाँ, अनम के लिए खाना मैं मुलाजमा के हाथ भेज दूंगी। जब उसे होश आए तो प्यार से खिला देना। दोबारा समझा रही हूँ, सख्त लहजे में बात मत करना उसे, बच्ची डर जाती है। सुन रहे हो? वो खामोशी से अपनी माँ की बात सुनता रहा। उनका रवैया बहुत नॉर्मल था, यूं जैसे उन्हें अनम की तबीयत खराबी से रत्ती बराबर भी फर्क ना पड़ता हो। और नौमान भाई, जब वो उनका जिक्र करती तो उनके तासुरात काफ़ी अजीब हो जाते थे। यूं लगता था जैसे उन्हें अपने बेटे की मौत का कोई दुख भी नहीं। वो इतने सपाट लहजे में बात करती गोया किसी और के मुतल्लिक बात कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया तो अनम होश में आ रही थी। वो धीरे से उसके करीब बेड पर बैठा और नरमी से उसके बालों में हाथ फेरने लगा। तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। इससे पहले कि वो उठकर बैठती, अरमान नरमी से उसे देखते हुए बोला, लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। और मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें ला देता हूँ। उसका लहजा इतना नरम और पुरसकून था कि अनम खामोशी से लेटी रही और चंद लम्हों बाद नरमी से बोली, मुझे पानी चाहिए। अरमान ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन नकाहत की वजह से उसे उठा नहीं जा रहा था। तभी कमर को सहारा देकर उसे पानी पिला दिया। मुझे लग रहा है तुम्हें बुखार हो गया है। उसके माथे पर हाथ रखकर हिद्दत को महसूस करते हुए वो पुरसोच लहजे में बोला, जिस पर अनम ने एक निगाह उस पर डाली और दोबारा तकिए पर तकरीबन गिरने के अंदाज में लेट गई। अरमान ने थर्मामीटर निकालकर उसका बुखार चेक किया था। तकरीबन 102 बुखार था। तभी मुलाजमा खाने की ट्रे देकर जा चुकी थी। खाना खिलाने के बाद अरमान ने उसे दवाई दी और दोबारा कंबल ओढ़ाकर सोने की तलकीन करने लगा। थोड़ी देर बाद जब कुछ हद तक वो पुरसकून हुई तो अरमान वहाँ से उठने लगा। तभी अनम ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। अरमान ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, जो शायद उसे कुछ कहना चाहती थी, और उसकी आंखों में आंसू भी थे। क्या बात है अनम? वो बोलना चाहती थी, लेकिन बोलते बोलते उसने अपने होंठों को दांतों तले दाब लिया। फिर नफ़ी में सर हिलाकर बोली, तो सिर्फ इतना? शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? अरमान को वाकई में समझ नहीं आया था कि वो किस बात का शुक्रिया अदा कर रही है। मेरा ख्याल रखने का। ख्याल रखने पर शुक्रिया अदा नहीं करते। वैसे भी ये मेरा फ़र्ज़ है। बीवी हो तुम मेरी, छोड़ तो नहीं सकता ना तुम्हें। वो बड़े आराम से नरम लहजे में एक एक लफ्ज़ बोल रहा था। अनम ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन खामोश हो गई। तो अरमान नरमी से उसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, मैं यहीं सोफे पर लेटा हुआ हूँ और जाग रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बता देना, और परेशान मत होना, बल्कि सोने की कोशिश करो। जिस तरह तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई है, तुम्हें नींद की शदीद ज़रूरत है। इस बात पर अनम ने सर हिलाया और आंखें मूंद कर लेट गई। अरमान ने बेड से खड़ा होना चाहा, लेकिन उसका हाथ अभी तक अनम के हाथ की गिरफ्त में था। वो जैसे ही उठने लगा तो अनम ने दोबारा आंखें खोल दी और फिर उसका हाथ जो थाम रखा था उसे देखते हुए नरमी से बोली, क्या आप यहीं मेरे पास बैठ सकते हैं?
یہ پہلی مرتبہ تھا جب انم نے یوں براہ راست کوئی بات اس سے کی تھی، اور وہ بھی ڈرے بغیر۔ ارمان کو سمجھ نہیں آیا وہ یہ بات کیوں کر رہی ہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ اس کی بیٹھنے کی تو تسلی پا کر انم دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی گہرے سانس لینے کی آواز آنے لگی، جس کا یقین کرتے ہوئے ارمان وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور صوفے پر آ کر بیٹھا۔ وہ کافی پریشان ہو چکا تھا، اور اس بات کا بھی اسے یقین تھا کہ انم کوئی بہت بڑی بات اس سے چھپا رہی ہے۔ وہ بات اکیلی نہیں بلکہ ماما بھی جانتی ہیں اور برابر کی شریک ہیں، لیکن صرف اسے بتانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں پر مزید بیٹھنے کے بعد جب اسے تسلی ہو گئی کہ ہاں اب انم واقعی میں گہری نیند میں جا چکی ہے، تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا آیا۔ اس کے قدم نعمان کے کمرے کے سامنے آ کر رک گئے۔ کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ جب سے نعمان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کر اب تک اس نے نعمان کے کمرے کا دروازہ کھلا نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اسے شدید قسم کا تجسس ہونے لگا تھا کہ وہ اندر جھانک کر دیکھے آخر کیا ہے ایسا جو اس سے چھپانے کے لیے ماما اور انم دونوں ہی کافی بے چین ہو رہی ہیں۔ دروازے کی چابی تو تھی نہیں، اگر وہ شور کر کے کھولتا تو ماما وہاں پر آ جاتی، شاید انم بھی نیند سے جاگ جاتی۔ کچھ سوچ کر وہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلایا جہاں پر کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ صحن ویران پڑا تھا۔ کھڑکی کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اندر سے لاک تھی، مگر ایک دو شدید جھٹکے لگانے سے چٹخنی خود بخود کھل گئی تو کھڑکی کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر لائٹ تو نہیں جلا سکتا تھا، تبھی موبائل کی ٹارچ آن کر کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ فرنیچر پر کافی مٹی پڑی ہوئی تھی، جو بنتا بھی تھا۔ اتنے مہینے سے تو وہ کمرہ بند تھا، شاید کبھی کھول کر اس کی صفائی تک نہیں ہوئی تھی۔ یہی مٹی دیکھتے دیکھتے اچانک سے اس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی، اور ایک لمحے کے لیے ارمان کو لگا کہ شاید وہ اگلا سانس بھی نہ لے سکے، کیونکہ سائڈ ٹیبل پر جو کچھ رکھا تھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ موبائل کی ٹارچ آن کرتے ہوئے وہ ٹیبل کے قریب آیا اور بغور ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ اسے اب یقین آ چکا تھا کہ انم کی اتنی بری حالت ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اگر وہ نعمان کے ساتھ اسی حالت میں رہتی آ رہی تھی۔ اس نے ٹارچ لگا کر باقی کمرے کا بھی جائزہ لیا، لیکن وہاں پر اس شے کے علاوہ کچھ بھی اتنا عجیب نہیں تھا۔ شاید انم کو اس بات کا ڈر تھا تبھی وہ گھبرا رہی تھی۔ اسے گیلری میں قدموں کے چاپ کی آواز سنائی دی تو وہ چپ چاپ کھڑکی سے کود کر باہر آ گیا اور دروازہ ساتھ لگا دیا۔ نہ جانے کتنی دیر پچھلے صحن میں کھڑا وہ اپنے تنفس کو نارمل کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا رہا۔ وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا بھائی اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس بات کا بھی یقین آ چکا تھا کہ اس کی ماں کسی بھی بات سے انجان یا بے خبر نہیں تھی، وہ اس کے بھائی کی ایک ایک عمل سے خبردار تھی۔ تبھی تو نعمان کے مرنے پر انہیں زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا اور وہ اتنی پرسکون دکھائی دے رہی تھی، جبکہ بابا تو یوں لگتا تھا جیسے نعمان بھائی کی موت کے بعد بالکل ہی زندہ لاش بن گئے ہوں۔ ان سے کوئی بات پوچھی جاتی تو اس کا جواب دینے میں کافی دیر لگا دیتے، بیٹھے وہ خلا میں گھورنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنے مہینے بیت جانے کے باوجود نعمان بھائی کی موت کے صدمے سے باہر نہیں نکل پائے تھے، جبکہ ماما یوں تھی جیسے انہوں نے نعمان بھائی کی موت پر شکر کا کلمہ پڑھا ہو۔ جب وہ واپس گھر کے اندرونی حصے کی طرف آیا تو اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ کچن سے جا کر تقریباً 2 گلاس پانی پینے کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھلی تو وہ وہیں چیئر پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ انم اس کی پہلی محبت تھی، اور شاید یہی اس نے غلطی کی تھی کہ وہ اپنی پہلی محبت کو نعمان جیسے درندے کے ہاتھوں سونپ کر چلا گیا تھا۔ اسے اپنی محبت کے لیے لڑنا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں لڑ پایا، جس کا خمیازہ آج وہ بری طرح بھگت رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کتنی ہی دیر اپنے خیالوں میں وہ وہیں پر بیٹھا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے کی طرف آیا تو انم ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ وہ وہیں کرسی پہ بیٹھ کر اس کے قریب بیٹھا
और बड़ी फुर्सत से अनम के एक एक नक्श को टटोलने लगा। शादी के बाद ये पहली मर्तबा था, बल्कि शादी के बाद क्या, ये था ही पहली मर्तबा कि वो इतनी फुर्सत से उसके एक एक नक्श को देख रहा था। पहले उसको देखते हुए अजीब सी झिझक महसूस होती थी कि वो उसके भाई की बेवा है, लेकिन अब वो पूरे हक के साथ देखने में मगन हो गया। तभी किसी के मुसलसल देखने की एहसास से अनम की आंख खुली तो उसने अरमान को खुद को तकते पाया और एकदम बेचैन होकर बोली, क्या बात है अरमान, आप ठीक हैं? वो उसके देखने से काफ़ी घबरा गई थी। अरमान ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी पुश्त पर अपने लब रख दिए। इस बात पर वो एकदम बेचैन होकर रह गई और मचल कर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाना चाहा, लेकिन अरमान की गिरफ्त उसके हाथ पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। हाथ छुड़वाने पर बोला तो सिर्फ इतना कि एक मर्तबा छोड़कर जा चुका हूँ मैं, तुम्हें दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगा। तुम बताओ, क्या तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई? ये कहते हुए धीरे से उसने अनम के माथे पर हाथ रखकर बुखार की हिद्दत को मापना चाहा तो अनम ने अपना माथा पीछे कर लिया और नरमी से बोली, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या मामा जानती थी तुम्हारे साथ नौमान भाई का रवैया क्या है? बेशक मुझे सवाल का जवाब ना दो, क्योंकि मैं जानता भी हूँ, वो भी हर बात से वाकिफ़ होंगी। सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। उसने अनम के सवाल का बिल्कुल उलट जवाब दिया तो वो बौखलाकर इधर उधर देखने लगी कि किसी तरह वो अरमान से अपनी जान खलासी करवा सके। अनम, तुम्हें याद है, शायद तुम्हारी चच्ची की सालगिरह थी और तुम दफ्तर में अपने चचा को लेने आई थी, क्योंकि तुम्हारी चच्ची को उनकी चॉइस काफ़ी पसंद थी, मगर तुम्हारे चचा तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर रहे थे। वो दिन था जब पहली मर्तबा मैं किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, और शायद वही आखिरी दिन भी था, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, तुम थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मुकम्मल तौर पर सोच चुका था कि मामा और बाबा को तुम्हारे घर भेजूंगा, लेकिन उससे पहले ही शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था कि तुम मेरे भाई की बीवी बन गई। मैंने एहतजाज नहीं किया। अगर इतना अरसा मैं यहाँ से दूर रहा हूँ तो इसकी वजह भी ये थी कि मैं तुम्हें अपने भाई के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब भी अगर तुमसे कतरा रहा था तो ये बात मुझे चैन नहीं लेने देती थी कि तुम इतनी देर मेरे भाई की बीवी रही हो, लेकिन आज मैं पूरे दिल और होश के साथ तुम्हें अपनी ना सिर्फ बीवी बल्कि मोहब्बत के तौर पर भी तस्लीम करता हूँ। इस बात पर अनम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेचैन होकर बोली, अरमान, क्या हो गया है? आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। तुमने या मामा ने मुझे अरमान भाई के कमरे की चाबी नहीं दी, लेकिन मैं खिड़की से कूदकर अंदर वो सब कुछ देख चुका हूँ जो तुम्हारे साथ होता रहा। बेड की साइड टेबल पर हंटर पड़ा हुआ था और उन दवाइयों की शीशियाँ भी रखी थी जो यकीनन किसी को जहनी तौर पर पागल करने के लिए दी जाती हैं और डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं मिलती। यकीनन नौमान भाई ने वो दवाइयाँ दे देकर तुम्हें जहनी तौर पर मफलूज करने की कोशिश की है, और वो हंटर भी कमोबेश तुम्हारे लिए ही रखा होगा। बाकी जो रवैया तुम्हारे साथ मेरा था, जब भी मैं तुमसे बात करता तो तुम घबरा जाती कि मुझ पर हाथ मत उठाइएगा, मुझे मारिएगा मत। इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि तुम एक जहनी मरीज के साथ रहती आ रही थी। बताओ, क्या मैं सच कह रहा हूँ ना? अनम खामोश हो गई। अरमान के दोबारा पूछने पर बोली तो सिर्फ इतना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो शायद बीमार थे। इस बात पर अरमान का दिल चाहा वाकई में वो अनम के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दे, जो इतना कुछ होने के बावजूद उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रही है जो उसके साथ इतना जुल्म करता रहा। किसे पागल बना रही हो? मामा जानती थी ना सब कुछ? जी, नौमान कहीं और शादी करना चाहते थे और वो लड़की क्रिश्चियन थी। जब आपकी मामा बाबा को इस बात का पता चला तो उन्होंने ज़बरदस्ती नौमान की शादी मुझसे करवा दी कि मैं उन्हें ठीक कर लूँगी, लेकिन नौमान ने एक दिन भी मुझे अपनी बीवी नहीं समझा। वो अपने गुस्से और ज़्यादती का बदला मुझसे लेते रहे, और तुम उस बीमार इंसान के साथ रहती रही कि तुम्हें मार मार कर शायद वो सेहतमंद हो जाएगा,
इस बात पर वो खामोश हो गई। तो अरमान फिर बोला, तभी तो नौमान भाई की मौत पर मामा इतनी दुखी दिखाई नहीं दे रही थी। आप प्लीज़ ये बात आंटी से मत कीजिएगा, वो परेशान हो जाएंगी। उन्होंने मुझे मना किया था कि ये सब कुछ आपको ना बताऊं। वो अपनी गलती का अजाला करना चाहती थी। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि आप नौमान जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तभी तो दोबारा अपनी बहू बनाकर वो मुझे इस घर में लेकर आईं। वो तुम्हें दोबारा अपनी बहू बनाकर नहीं लाई, वो दोबारा तुम्हें इसलिए अपने घर में लाई हैं कि खुदा न ख्वास्ता उनके पहले बेटे की तरह दूसरा बेटा भी जहनी मरीज निकला तो तुम जैसी साबिर शाकिर लड़की चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी। मुझे ये सब कुछ मत बताओ। वो खामोश हो गया तो अनम भी चुप कर गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी इस वक्त अरमान को समझाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं नौमान नहीं हूँ, मैं अरमान हूँ। वो अरमान जो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें भुलाने के लिए ही तुमसे दूर जा बसा था। आज अगर किस्मत ने दोबारा फिर तुम्हें मेरी झोली में लाकर डाला है तो मैं नाशुक्री नहीं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। बस मुझे नौमान की तरह मत समझना। मुझे एक मौका देना, मैं तुम्हारे तमाम शिकवे दूर कर दूंगा। बताओ, क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? तुम्हें जितना वक्त चाहिए संभलने के लिए तुम ले सकती हो, लेकिन अनम, मुझ में इतना हौसला नहीं कि एक मर्तबा फिर मैं तुम्हें दूर कर सकूं। ये कहते हुए उसने नरमी से उसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए और तभी अनम को एहसास हुआ कि अरमान रो रहा है। बेख्तियार उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। लेकिन मैं बीमार हूं, वो बोली तो सिर्फ इतना। तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें बीमार बनाया गया है। मैं शफा बनना चाहता हूं अनम, तुम्हारी। बताओ, क्या तुम मुझे अपनी शफा बनने का मौका दोगी? वो बच्चों की तरह उससे पूछ रहा था, जिस पर उसने कहा तो कुछ नहीं, बस चुपचाप आगे बढ़कर अरमान के गले लग गई, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी उसने अरमान में वैसी कोई सिफ्त नहीं देखी थी जो नौमान में पाई जाती थी, और उसे यकीन था कि वो शख्स अपने कौल और फेल का ज़रूर पक्का निकलेगा। तो फिर कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।